سب سے پہلے بات کریں بجٹ کی تو سندھ کا بجٹ جمعہ المبارک کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پیش کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 3000 ارب روپے سے زائد ہے۔ کچھ محکموں میں ترقیاتی بجٹ کم کر دیا گیا، البتہ زیادہ تر محکموں کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ بجٹ میں صوبائی ٹیکسوں کی شرح میں اضافے کا امکان، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی توقع ہے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ سندھ کے 3000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ کل پیش ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سپہر 3 بجے ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ اجلاس سے قبل سندھ کابینہ سے نئے مالی سال کے بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سالانہ ترقیاتی پروگرام کا بجٹ 493 ارب روپے سے بڑھا کر 503 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ تعلیم کے شعبے کا ترقیاتی بجٹ 32 ارب روپے سے بڑھ کر 38 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ صحت کے شعبے کا ترقیاتی بجٹ 18 ارب سے بڑھ کر 21 ارب روپے ہے۔ کراچی کے میگا ترقیاتی منصوبوں کا بجٹ 1 ارب 38 کروڑ روپے سے بڑھا کر 2 ارب 14 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ شہر کے نئے منصوبوں کے لیے 12 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ بلدیات کا ترقیاتی بجٹ 74 ارب 37 کروڑ روپے سے کم کر کے 66 ارب 11 کروڑ روپے مختص کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ کا ترقیاتی بجٹ 12 ارب روپے سے کم کر کے 11 ارب 11 کروڑ روپے ہے۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کا ترقیاتی بجٹ 32 ارب روپے سے کم کر کے 10 ارب 91 کروڑ روپے ہے۔ اسکول ایجوکیشن کا بجٹ 20 ارب روپے سے کم کر کے 17 ارب 82 کروڑ روپے مختص ہے، جبکہ کالج ایجوکیشن، یونیورسٹیز اینڈ بورڈز، آبپاشی اور محکمہ ٹرانسپورٹ میں نئی اسکیموں کی وجہ سے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس، خدمات پر ٹیکس اور تفریحی ٹیکس میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی بجٹ میں کراچی نظر انداز، میئر کراچی نے بھی وفاقی حکومت سے شکوہ کر دیا، کہا یہ شہر پاکستان کا معاشی اور صنعتی دارالخلافہ ہے۔ وزیر اعظم عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں۔ سندھ حکومت کل اپنا بجٹ پیش کرے گی۔ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول کراچی کو حق دلوائیں۔ ہب ڈیم سے بنائی جانے والی 100 MGD کی نئی کینال کا افتتاح 14 اگست کو کریں گے۔ سندھ حکومت کل اپنا بجٹ پیش کرے گی۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب ایک بار پھر برس پڑے، وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں فٹ بال اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کی سنگ بنیاد کی تقریب، مرتضی وہاب بولے گورنر سندھ کے ذریعے کراچی کو 100 ارب روپے دینے کی درخواست وزیر اعظم کو دی تھی۔ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی کراچی کو حقوق دلوانے میں کردار ادا کریں، وزیر اعظم پیسے دیں گے تو شہر کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ گزارش کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب، جو اپنے وعدے ہیں ان کو وفا کیجئے۔ 100 ارب روپے جو مطالبہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے گورنر کے کہنے پہ، اس کی ریکویسٹ پہ کہ میں مسئلہ حل کرا کے دوں گا، ہم نے جو درخواست آپ کو بھیجی ہے اس درخواست پر عمل درآمد کر وہ 100 ارب روپے کراچی کے لیے مختص کیجئے، KMC کو ڈیولپمنٹ گرانٹ دیجئے، اور جس طرح یہ ہم کام کر رہے ہیں کراچی کے ہر ضلع میں، ہر ٹاؤن میں یہ کام کر رہے ہیں۔ میئر کراچی نے نون لیگ پر بھی تنقید کے نشتر برسا دیے، بولے مریم نواز کی اشتہاری مہم پر بات کرنے کا جواب پوری حکومت دے رہی ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ سے میئر کا موازنہ کرنا سراسر زیادتی ہے۔ عثمہ بخاری نہیں چاہتی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات قائم رہیں۔ میں نے مریم صاحبہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا کہ میرے پاس تو وہ ذرائع نہیں ہیں کہ میں ایڈورٹائزمنٹ کی کیمپین چلا سکوں، اس لیے میں سڑک پر گھوم رہا ہوں آپ کے سامنے، یہی کہا نا میں نے۔ یار اس پہ اتنا ناراض ہو گئے۔ عظمہ صاحبہ کی اگر آپ ماضی کی بھی پریس کانفرنسز دیکھیں نا تو اس طرح کی بہت ساری اور باتیں بھی انہوں نے کی۔ وہ نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات شاید ٹھیک رہیں۔ شہر میں اضافی پانی لانے کی نوید سناتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہب ڈیم سے بنائے جانے والے 100 MGD کے نئے کینال کا افتتاح 14 اگست کو کریں گے۔ اس شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو بھی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ MQM سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار۔ MQM کا بجٹ اجلاس کے دوران بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کہ عوام کے حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان شہری سندھ کی ایک مؤثر آواز ہے، پورے سندھ کی ایک مؤثر آواز ہے۔ اپوزیشن میں کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے، نا امیدی کفر ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ علاقے، وہ کانسٹیٹوئنسیز جہاں پہ شاید پیپلز پارٹی کے لوگ موجود نہیں ہیں،
यानी कि मैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो जीती है, और शहरी सिंध है वो मेजॉरिटी कराची है, हैदराबाद है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कराची और हैदराबाद को जिस अंदाज से वफाक ने समाओ उस अंदाज से ऑनर नहीं किया है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है, हमने प्री बजट में भी अपनी तजावीज़ दी थी, वो भी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। और ये शहर डिमांड करता है, ये भीख नहीं मांगता, ये शहर डिमांड करता है कि इनके इस शहर में के रहने वालों के और इस शहर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें, और ये हुकूमतों का काम है पूरी करना। तो अगर हमें लगेगा, हम देखेंगे कल बजट में, बजट अभी मैं नजूमी तो हूँ नहीं कि मैं बता सकूँ कि कल बजट में क्या क्या चीज़ें आने जा रही हैं, ना मैं हुकूमत हूँ। हुकूमती वज़रा को पता होगा यकीनी तौर पर, वज़ीर ख़जाना जो सिंध के हैं, वो जो कि वज़ीर आला हैं, उनको पता होगा इस सूबे के बजट में क्या आने जा रहा है। तो कल जब बजट पेश हो जाएगा असेंबली में, उसमें देखेंगे, हम गो थ्रू करेंगे और उसके बाद अपनी पॉलिसी। सिंध के बजट पर ताजिर बरादरी का रद्द-ए-अमल, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी को तरजीह देने का मुतालबा। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि कराची सिंध का 80% रेवेन्यू देता है, लेकिन शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनासिब सरमाया नहीं लगाया जा रहा। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। कराची 80% रेवेन्यू देता है मगर सहूलियात में सिफर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ताजरों ने बजट से कबल सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। मारूफ कारोबारी शख्सियत अहमद चुनाय का कहना है कि कराची सिंध का 80% रेवेन्यू देता है, लेकिन बदकिस्मती से इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो नहीं दी जाती। सिंध हुकूमत को चाहिए कि कराची के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट मुख्तस करे ताकि कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिले। सिंध गवर्नमेंट ने जहाँ अच्छे काम करने की यकीन दहानी कराई है, वहाँ मैं समझता हूँ कि ये अच्छे काम भी होने चाहिए कि बजट ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तस होना चाहिए कराची की डेवलपमेंट के लिए, और उसको ओन करना चाहिए। इसकी ओनरशिप जब आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जहाँ दूसरे शोबों में जैसे कि हेल्थ है उसमें अच्छा काम कर रही है, वहाँ इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जो है वो अच्छा काम हो जाएगा। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। ये शहर पाकिस्तान का माशी हब है, इसकी तरक्की पूरी मईशत की बेहतरी है। दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आला सिंध से कि जो सिंध का बजट पेश किया जाए उसमें रोडों को, स्ट्रक्चर को देखा जाए, और इस तरह हमें अमल दरामद कराना है कि हमें तक कराची को एक रोशनियों का शहर बनाना है। ताजिर बिरादरी का मुतालबा है कि बजट में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अवलीन तरजीह दी जाए ताकि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कब आपको बताएं, कराची वालों को फिर रिलीफ मिलेगा। महाना एडजस्टमेंट में बिजली फिर सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 4.69 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर नैपरा में जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त पर समाअत 19 जून को होगी। मंजूरी पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 70 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। आपको बताएं, कराची वालों को फिर रिलीफ मिलेगा। महाना एडजस्टमेंट में बिजली फिर सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 4.69 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नैपरा में जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त पर समाअत 19 जून को होगी। मंजूरी पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। वाटर कैनन का इस्तेमाल, डंडे भी बरसाए गए। लेडी हेल्थ वर्कर्स की बिल आखिर सुन ली गई। सिंध असम्बली के बाहर सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद कई घंटों से जारी धरना खत्म। चेयरपर्सन बुशरा आराइन कहती हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई। निजकारी वाले नकात पर बात तय पाना खुशाइंद है। तफसीलात मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट में। लेडी हेल्थ वर्कर्स का डट जाना काम कर गया। हुकूमत से मुतालबात मंजूर करवा लिए। सिंध असेंबली के बाहर कई घंटों से जारी धरना खत्म। दिन भर गर्मा गर्मी बातचीत के दौरों के बाद सिंध हुकूमत के नुमाइंदों और लेडी हेल्थ वर्कर्स की शाम को दोबारा बैठक लगी, जिसमें हुकूमत ने मुतालबात की मंजूरी का वादा कर लिया। जिसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स की चेयरपर्सन बुशरा आराइन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। बुशरा आराइन कहती हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई। निजकारी वाले नुकात पर बात तय पाना खुशाइंद है। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुतालबा किया था कि निजी इदारों की सरपरस्ती कबूल नहीं, पेंशन जारी रखें, टेक्निकल पोस्टें बहाल की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद फराज के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। एक माह बीत गया, रिकॉर्ड फराहम क्यों नहीं किया गया? 16 जून तक रिकॉर्ड ना मिला तो शीट और हेड क्लर्क के खिलाफ एक्शन होगा। कराची पुलिस में ASIs की तरक्कियां ताखीर का शिकार। एक माह गुजरने के बावजूद किसी डिपार्टमेंट ने सर्विस रिकॉर्ड फराहम ना किया। एडिशनल IG रिकॉर्ड के मुंतजिर थक कर दोबारा IG जोनल DIGs को खत लिख दिया। 16 जून तक सर्विस रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक मुतलका किसी भी डिपार्टमेंट ने सर्विस रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। एक माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद
एडिशनल आईजी रिकॉर्ड के मुंतसिर हैं। 100 से जायद ASIs की तरक्की के लिए 15 मई को सिंध पुलिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड मांगा गया था। कराची पुलिस चीफ ने IG सिंध और जोनल DIGs को दोबारा खत लिख दिया है, जिसकी कॉपी CT21 ने हासिल कर ली। खत में लिखा गया है कि 16 जून तक हर हाल में ASIs का सर्विस रिकॉर्ड फराहम किया जाए। कराची फिर लरज उठा, शहर में एक बार फिर जलजिले के झटके। कायदाबाद, गडाप, मली, THA और करंगी में झटके महसूस। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज मली के जनूब मशरिक से 8 किलोमीटर दूर था। शिद्दत 2.6, गहराई 10 किलोमीटर थी। 1 जून से अब तक कराची की जमीन 36 बार लरस चुकी। बल्दियाती इदारों को माली तौर पर बाइख्तियार और सूबाई मालियाती कमीशन कायम किया जाए। बल्दियाती नुमाइंदों, सियासी रहनुमाओं, कानूनी और समाजी माहिरीन ने मसाइल के हल का नुस्खा बता दिया। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। माली तौर पर बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम मसाइल का वाहिद हल। मकामी होटल में लीगल राइट्स फोरम की जानिब से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस। अरकान असेंबली, बल्दियाती नुमाइंदों, वकुला रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। MQM के अरकान असेंबली दानियाल अहमद, मुईद अनवर, आदिल अस्करी, जबकि PTI के अरकान रेहान बंदूकड़ा और बिलाल जदून ने खिताब में सूबाई मालियाती कमीशन कायम करके बल्दियाती इदारों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने का मुतालबा किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए लोकल बॉडीज़ के टाइमली, और उसको पैक कर दिया जाए अगेंस्ट द जनरल इलेक्शंस के। जब तक लोकल बॉडीज़ जो 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है उसके इलेक्शन ना हो, उस वक्त तक जनरल इलेक्शन भी ना हो। तो उससे ये होगा कि ये मेक श्योर हो जाएगा कि इम्प्लीमेंट हो इन लेटर एंड स्पिरिट, और ऑटोमेटिकली लोगों को डोर स्टेप के ऊपर उनकी सहूलियात को डिलीवर किया जाएगा। हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कंट्रोल है हमारे हाथ में ही रहे, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाह रही। जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करे नीड ऑफ द सिटीजन्स, और वो नीड ऑफ द सिटीजन्स पूरा लोकल बॉडी ही कर सकती है, क्योंकि वो उस इलाके का आदमी होगा, वो वहाँ रहता होगा, वो उस गली कुचे में हर दिन आता जाता होगा, काम से निकलता होगा, घर रात को वापस आता होगा, लोगों को जानता होगा। तो जब वही आदमी को आप इख्तियार दें कि उस इलाके को बेहतर करे, वो अपना घर समझ के करेगा। कराची बार के जनरल सेक्रेटरी रहमान कोराई और मलीर बार के जनरल सेक्रेटरी अयाज चांडियो बोले, कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। पीपल्स पार्टी की शहजादी राय और श्री एजाज ने कहा कि जब तक बल्दियाती इदारे हकीकी मायना में मजबूत नहीं होंगे, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। फाइनेंस कमीशन बनने थे, वो नहीं बने। अगर वो नहीं बने हैं तो वो जो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली और वो जो काम होना है वो विदाउट पैसे, विदाउट स्ट्रक्चर कैसे होगा? कि अवामी नुमाइंदों को ही अवेयर किया जाए ताकि आवाम को बेहतरीन सहूलतें दी जा सकें। कॉन्फ्रेंस से उज़्मा नूरानी, नासिर मंसूर समेत मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने खिताब किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। तब आपको बताएं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड रवा साल 11 माह में मुकर्रर करदा हदफ से ज़ायद वसूलियाँ करने में कामयाब। रवा माह तक 23 अरब टैक्स जमा हो जाएगा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक माली साल के 11 माह में सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 270 अरब रुपए के टैक्स जमा किए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के रेवेन्यू अहदाफ में 28% इजाफा हुआ। पॉइंट ऑफ सेल्स की तादाद बढ़ाने और दीगर इंतजामी इकदाम से रेवेन्यू में इजाफा हुआ। सिंध रेवेन्यू बोर्ड माली साल के इख्तिताम तक 300 अरब रुपए की टैक्स जमा कर लेगा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने माली साल 2024-25 के लिए 350 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया था।